Brothers and sisters, the fight is about the Constitution. This Constitution was prepared by the Congress Party, by the people of India, by Mahatma Gandhi, Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel ji, Ambedkar ji. This Constitution is under attack. This Constitution is an ideological document that reflects the ideology of the Congress Party. It does not reflect the ideology of the Sangh Parivar or the RSS. And that is why they are intent on destroying this Constitution and capturing all the institutions that emerge from it. It is our duty as Congress members to protect this Constitution, to protect the rights of every single Indian, all communities, all languages, all genders. It is our duty and our right because it is our ideology that is reflected in the Constitution. The BJP and the RSS are attacking our institutional framework, and they think that just because they are in power, they have huge amount of financial capacity that nobody is going to resist them. They are absolutely wrong. The Congress worker and the Congress Party and the large mass of India's people are going to fight for this Constitution and are going to defeat the RSS and the BJP. I also said that a few days ago, the BJP and the RSS attacked the freedom of religion. The Waqf bill and the article that appeared in the RSS magazine, The Organizer, where they said that they are now going to attack the land of our Christian brothers and sisters, are both attacks on the Constitution of India. And they must be seen in that light. I also spoke about the caste census and about how we have taken a tremendous step in Telangana, which has revealed a lot about the communities that are participating in different activities in the state. Finally, I would request all Congress members from all our states that it is your responsibility to defend the Constitution. It is your responsibility to defend the ideology of the Congress Party. And I'm proud that you do it every single day against great odds. Thank you very much. Namaskar. देखिए, भारत जोड़ो यात्री के रूप में गुजरात से मैं एक मात्र यात्री रहा जो 4000 किलोमीटर से राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर मैं चला। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये जनता के मुद्दों की यात्रा थी, ये किसानों के मुद्दों की यात्रा थी, ये नौजवानों के मुद्दों की यात्रा थी, ये छात्रों के मुद्दों की यात्रा थी, ये देश के मुद्दों की यात्रा थी। और ये यात्रा पहली बार नहीं हुई थी। ये यात्रा इंदिरा गांधी जी के जमाने से, राजीव गांधी जी के जमाने से, महात्मा गांधी जी के जमाने से, नेहरू जी के जमाने से, हर बार ये यात्रा हुई जनता के मुद्दों की यात्रा। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो आईटी क्षेत्र में पूरी दुनिया से देश को जोड़ने की बात हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में देश को, देश की जनता को, सबको अपना हक देने की बात हो, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, जो देश के मुद्दों की बात जब जब देश की जनता पर किसी तरह का आक्रमण हुआ है, कांग्रेस के नेताओं ने यात्राएं करके जनता के बीच में जाकर राहुल गांधी ने यह तय किया। हर कांग्रेस के नेता सब ये समझते थे कि 400 पार के नारे के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब मायूस बैठे थे। लेकिन राहुल गांधी निकले, उन्होंने कहा कि 4000 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस के विचार की बात करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो साथियों,
हमारी ये यात्रा चलती रहेगी। आज ये अधिवेशन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के नाम से जो अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में हो रहा है, और राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया है भारतीय जनता पार्टी को हराना, ये जो चैलेंज है, मंच पे बैठे हुए जितने भी नेता हैं उनसे ज्यादा जो सामने बैठे हैं, ये लोगों की ताकत और इनकी वजह से चुनाव हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद। साबरमती के तट से एआईसीसी अधिवेशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, त्याग तपस्या के समर्पित प्रतिभा, करोड़ों देशवासियों का दिल के आवाज, सीपीपी के नेत्री मोहतरमा सोनिया गांधी जी, नौजवानों के साथी, वंचित अवहेलित निष्पेषित वर्गों का मसीहा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑपोजिशन लीडर माननीय राहुल गांधी जी, मंच में विराजमान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, देश से आए हुए हजारों मेरे प्यारे एआईसीसी सदस्य भाई और बहनों और मीडिया को साथियों, आज एक अपार संभावना के साथ इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं। एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष के पीछे एक नई ताकत, एक नई बुनियादी ढांचा की आवश्यकता है। जिन्होंने मंजिल को छूने के लिए कदम बढ़ाया है, चाहे पथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, राहुल जी कभी झुकते नहीं है, राहुल जी कभी रुकते नहीं है, राहुल जी सिर्फ आगे बढ़ते हैं इस देश की गणतंत्र संविधान को बचाने के लिए। और मुझे उम्मीद है आज हम सब आए हैं इस गणतंत्र संविधान को बचाने के लिए। अपने बूथ को मजबूत बनाना, अपना वार्ड को मजबूत बनाना, अपना पंचायत को मजबूत बनाना, अपना कंस्टिट्यूएंसी को जब हम मजबूत बनाएंगे तो ये नफरत की राजनीति करने वाले भाजपाओं को, एनडीए वालों को तभी एक पैगाम हम दे सकते हैं। मित्रों, एआईसीसी अधिवेशन अपने आप में एक अनोखा बात है। ये मंच हमें साझा करता है, चाहे कितना परिस्थिति कठिनाई तक न क्यों ना आए, कभी हम रुकेंगे नहीं, कभी हम झुकेंगे नहीं, कभी हम दबेंगे नहीं। देश की आवाम के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो संसद के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो या फिर सड़क के साथ हो। साथियों, आज समय आ चुका है, एकजुटता के साथ हमको इस आवाम को आगे बुलाना है और एक नई इतिहास की क्रांति को आगे बढ़ाना है। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी का वही नारा था जब भारत वर्ष को एक विकसित राष्ट्र तभी हम बना पाएंगे जब हम वंचित, अबलित, महिलाओं, युवाओं, किसानों के हाथ में इस देश का शक्ति बागडोर देने के लिए कोशिश करेंगे। वही राहों पर, वही कदम पर, वही नक्शे पर हम लोग को आगे चलना है। मुझे याद है वो मंच, कभी हम बोलते थे आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। फिर एक अधिवेशन में आदरणीय राहुल जी ने नारा दिया था, भरपेट खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। और एक बार राहुल जी का वही नारा था, जब मंच के ऊपर, मंच से नीचे का लोग आ जाएंगे तभी एक क्रांति होगा, कांग्रेस एक नई इतिहास, बेमिसाल इतिहास पैदा करेगा, तभी नौजवानों के अंदर में वो ताकत आएगा, वो जोश आएगा और एक नई इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए मंच में वरिष्ठ नेतागण बोलने का मौका दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं और इस मंच से कसम खाता हूं, चाहे वतन के लिए, पार्टी के लिए कुर्बान देने के लिए क्यों ना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे, पार्टी को आगे लाएंगे और डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए कसम खाएंगे। और मैं नारों के साथ आपसे साझा करने के लिए चाहता हूं, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय कांग्रेस।